चलो शुरू करते हैं। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी का बेसिक फंडा तो मैं आपको बता चुका था, है ना? बता चुका था ना, नहीं बताया था? कि नाउ लेट्स से यू हैव अ डिस्टर्बेंस, चपत पड़ती है, नाक हो जाता है उसका लेफ्ट की तरफ, हवा कहाँ से आ रही है? राइट से आ रही है। व्हाट इज द साइड स्लिप? वेयर इज द विंड कमिंग फ्रॉम? विंड इज कमिंग फ्रॉम राइट, इट्स अ राइट साइड स्लिप. Nose is to the left. Wind is coming from the right, right side slip. Wind is coming from the left, left side slip. So now wind is coming from the right. अब वो सारी विंड यहाँ पे भी लग रही है. आपका जहाज बेसिकली ऐसे चल रहा था, चपक पड़ी, अब वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है ड्यू टू इनर्शिया. डिस्टर्ब होके उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. So now this relative airflow can hit the aircraft here. It can hit the aircraft here. It can hit the aircraft here. CG कहाँ पे? CG यहाँ पे है. तो अगर वो यहाँ पे कहीं पे हिट किया तो वो उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एंड इट विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अगर वो यहाँ पे जितनी फोर्स लगा रहा है सीजी के आगे, तो वो उसको इधर पुश करेगा, इट विल टेंड टू डीस्टेबलाइज. ओके, सो सीजी के पीछे अगर जितनी भी फोर्स लगी दैट इज अ स्टेबल आर्म. सीजी के आगे जितनी भी फोर्स लगी दैट इज एन अनस्टेबल आर्म. ये जो साइड वाले जो सरफेस है, ये जो साइड वाला सरफेस होता है, इस सरफेस को हम लोग कहते हैं कील सरफेस. KEEL, कील सरफेस. ये हमें स्टेबिलिटी भी देता है, ठीक है? बिकॉज यही सरफेस के ऊपर वो हवा लगेगी, वो फोर्स लगेगी. Pressure difference will act on this particular surface area, okay, and it will stabilize it. Rudder and vertical fin, they are the most powerful control surfaces. Aileron से भी, elevator और horizontal stabilizer से भी जो ज़्यादा powerful surface है, that is the rudder and the vertical fin. Okay, कोई doubt? No doubts? So let's talk about directional stability. Directional stability is also referred to as the weather cocking effect of the aircraft. वेदर कॉकिंग का मतलब क्या होता है? यू नो व्हाट अ वेदर कॉक इज? यू नो व्हाट इज अ विंड कॉक? विंड कॉक इज बेसिकली अ कॉकरल. नहीं देखा है? पता नहीं है? So this is a weathercock. How does this weathercock work? जहां से भी विंड आ रही है, ये जो पूरा weathercock है, ये उस डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देगा एंड इट विल टेल यू. सो व्हाट इज द weathercocking इफेक्ट? जहां से भी विंड आ रही है, मैं नाक अपनी उस दिशा में कर लूंगा. That is the weathercocking effect. So even when you're flying and you have crosswinds from the right, your nose automatically goes to the right because the wind is coming and hitting you from here, and it is hitting the tail plane. It is also hitting the nose, but it is also hitting the tail plane. तो ये नाक ऐसे हो जाएगी. विंड यहाँ से आ रही है, नाक, nose will go into the wind automatically. This is known as the weathercocking effect of the aircraft. And this is the same thing which is giving you stability, because if you have a disturbance and the wind is coming from the right, your nose will automatically tend to go into the line. It will try to align itself with the wind. That's the tendency. Clear? So now directional stability is basically due to the weathercocking effect of the aircraft. And this has a positive slope. The stability that we discussed, the longitudinal stability that we discussed, needs to have a negative slope. Okay? Just one second. Okay. So this needs to have a positive slope. Now let's talk about a side slip angle. Let's say we have an aircraft, इसको gust पड़ी and उसकी नाक right side में हो गई. So what is the side slip angle? So we have some relative airflow, and this relative airflow is making an angle with the longitudinal axis of the aircraft. ठीक है, laterally ये वाला angle, and this angle is known as the side slip angle. Is this a right side slip or a left side slip? It's a left side slip because the wind is coming from the left, but the aircraft got yawed in the right side. Clear? Now, similarly, this is a left yaw and a right side slip. Please understand the difference between the two. This is what a right side slip and this is what a left side slip looks like. And you now know what is the side slip angle.
Now, greater the side slip angle, greater should be my correcting force. Greater the side slip angle, और ज्यादा side slip angle बढ़ा दिया, और शुद्ध ज्यादा होनी चाहिए correcting force. But this side slip angle can only act up till a certain distance. उसके beyond तो यार वो अगर उससे ज्यादा एंगल बन गया तो ये देख रिलेटिव एयरफ्लो इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है तो एक फोर्स क्रिएट कर रहा है ना, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, कोई ना कोई तो फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो वो उसको करेक्ट कर दे रहा है. लेकिन अगर स्लाइड स्लिप एंगल ही बहुत ज्यादा हो गया तो ये टेल प्लेन ही तो स्टॉल कर जाएगी. एंगल बढ़ गया ना रिलेटिव एयरफ्लो के साथ एयरफ्रेम का. फिन क्या है, वो भी तो एक विंग ही है. फिन को ऐसे देखो, दिस इज ऑल्सो एन एरोफॉइल, दिस फिन इज ऑल्सो एन एरोफॉइल बट ऑन द साइड वेज. करेक्ट. सो अगर ये एंगल 16 डिग्री से ज्यादा हो गया इट विल स्टॉल. आफ्टर दैट इट विल बिकम अनस्टेबल. So it is stable only up to a certain degrees of side slip angle. Do you guys agree with this? कोई डाउट? स्टेबिलिटी है एक साइड स्लिप एंगल तक. So directional stability is given to you by the keel surfaces aft of the center of gravity. As discussed earlier, we have the center of gravity here and हवा आएगी यहाँ पे इसके पीछे पड़ेगी तो इधर चपत पड़ेगी. Wind is hitting it here. The airframe, the tail will tend to go in this direction and the nose will get back to its original position. Whereas if you have a forward surface, wind will hit it here and the airframe will tend to go here. We want the forces at the keel to be aft keel surface to be more always. अब देखो CG अगर पोजीशन यहाँ पे थी, मैंने उसको पीछे कर ली तो पीछे की कील सर्फेसेस कम हो गई, आगे की कील सर्फेसेस बढ़ गई. अग्रीड. पीछे की कील सर्फेसेस कम हो गई, आगे की कील सर्फेसेस बढ़ गई, तो स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी? घटी. एवरीवन अग्रीज? बोल के डू यू अग्री? ठीक है. So again, just like longitudinal control and longitudinal stability, forward CG stability is high. Okay, कोई doubt? Now let's understand how does this work. Can you see very clearly that how the fin is creating a stabilizing effect? Let's say this is the disturbance, relative airflow. It is hitting the keel surface and it is hitting the fin and it's creating this particular angle which is creating a force in this direction, and this force will create a stabilizing moment kind of like this. Okay, this is also given to you by the keel surface. So this is the keel surface which is forward of the CG and this is the keel surface which is aft of the CG. Forward one is destabilizing as discussed because it is taking it in the same direction. This one is stabilizing. Quite out? No. No, why CG is the bifurcating point? Because CG की by definition क्या है? First page of POF के notes. CG की definition क्या है? It is the point through which the aircraft rotates. It is the point about which the aircraft rotates. Okay? कोई doubt? चलो. Now let us talk about dorsal fin and let's talk about vertical fin. So what is the difference between dorsal fin, vertical fin? देखो, ये आपका एयरफ्रेम है, ये आपका फिन है, ठीक है. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिन लगा दी, इसको डॉर्सल फिन बोलेंगे. यहाँ पे एक फिन लगा दी, इसको वेंट्रल फिन बोलेंगे. डॉर्सल, वेंट्रल, दोनों का पर्पस है. दोनों का पर्पस है. ये डॉर्सल फिन कहाँ हेल्प करता है? हाई साइड स्लिप एंगल में हेल्प करता है. और ये कहाँ हेल्प करता है? हाई एंगल ऑफ अटैक. दोनों हाई एंगल्स पे हेल्प करते हैं, लेकिन ये हाई साइड स्लिप एंगल पे हेल्प करता है, ये हाई एंगल ऑफ अटैक पे हेल्प करता है. आओ चलो देखते हैं कैसे. So we all know that an airframe is supposed to be giving you stability at all regimes, all conditions. Let's talk about high side slip angles. Basically, dorsal fin. What does a dorsal fin do? It increases the stability at high side slip angles. Let's see how. A little background that I would like to talk about before I teach you this.
हम लोगों ने जब लिफ्ट कर्व के बारे में पढ़ा था, तो लिफ्ट कर्व में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लेट्स टेक द लिफ्ट कर्व वर्सेस द एंगल ऑफ अटैक कर्व। अगर हमारे पास ये नॉर्मल सीएल है फॉर अ स्ट्रेट विंग, अगर मैं उसको स्वीप बैक कर देता हूँ या उसकी एस्पेक्ट रेशियो कम कर देता हूँ, सो दिस इज अ मोर स्वीप बैक, स्वीप इज मोर, या फिर एस्पेक्ट रेशियो इज लेस, तो वो कर्व ऐसा हो जाता है। यस और नो? डू यू गाइज अग्री विद दिस? आप लोगों ने नोट्स में ये पढ़ा हुआ है। तो सीएल मैक्स जो थी हमारी, ये सीएल कर्व होता है, ये सीएल है, यहाँ पे एंगल ऑफ अटैक है। तो जो हमारा सीएल का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो कम हो गया। अग्रीड। बट व्हाट यू नीड टू लुक हियर इज अल्फा क्रेट, जो पहले इधर पे स्टॉल हो रहा था, वो अल्फा क्रेट 22 डिग्री, पहले जो 16 था अब वो 22 डिग्रीज हो गया। My alpha crit has increased. That means, let's see what does that mean. So what do we do if we add this particular dorsal fin? This is the look at the wing over here. इसका एस्पेक्ट रेशियो नोट डाउन कर लो। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज डाल दी, अब इसका स्वीप बैक बढ़ गया, एस्पेक्ट रेशियो कम हो गया। अग्रीड? कॉर्ड बढ़ गई ना, स्पैन तो उतना ही है, कॉर्ड बढ़ गई, एस्पेक्ट रेशियो कम हुआ। पहले इसका स्वीप बैक ये लाइन थी, अब इसकी स्वीप बैक ये लाइन हो गई है, स्वीप बैक भी बढ़ गया। सो डू यू थिंक एट अ वेरी, अगर ये नॉर्मल ऐसा वाला विंग रहता ना, तो वो इतने एंगल पे स्टॉल कर जाता। अगर इससे ज्यादा साइड स्लिप होता तो ये काम नहीं करता। लेकिन अब मेरे पास क्योंकि ये है, पहले वो जो इतने पे स्टॉल, फिन मेरा जो इतने एंगल पे स्टॉल हो रहा था, अब वो इतने एंगल पे भी जाके स्टॉल नहीं होगा। सो जब साइड स्लिप एंगल ज्यादा बढ़ जाए, उसको बढ़ाने के, भाई ये एंगल पे भी मेरे को स्टेबिलिटी दे, ये एंगल पे भी स्टेबिलिटी दे, उसके लिए डॉर्सल फिन लगाया जाता है। क्लियर? And the same example, clear example that I've told you is written over here. In the red, we have what happens to the aspect ratio. Then in relation to the lift curve that we studied, we'll see that alpha crit ko kya hota hai. And thereafter, I told you about the stalling of the fin. Please make a note. Tell me if you don't understand anything. Done? Okay, let's proceed then. Now let's talk about a ventral fin. Look at this aircraft. Let's pretend that you are the relative airflow and you're hitting the, and we are only talking about directions, okay? Now let's say you are cruising at zero angle of attack. You look at the plane kind of like this. You can see the tail plane. You can see the vertical stabilizer. Good, है ना? Now look at this. Now let's say my aircraft is cruising at a high angle of attack. Now you are the relative airflow. You can still see this portion of the rudder. You are the airflow. That means you can hit this guy. More high angle of attack. Close to the stalling angle of attack. Can you see the rudder or the tail plane? No, because it is now behind the fuselage. Agreed? So turbulent airflow will be hitting this. Can we all agree to this? Right. So this is a problem. When the aircraft is cruising at a high angle of attack, the airflow cannot really reach this guy. That's the problem. Let's fix this problem. ऊपर फिन था, ब्लॉक हो गया, नीचे फिन डाल, वेंट्रल फिन। ये वाली चीज स्टेबिलिटी देगी, तो आपका एंगल ऑफ अटैक बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा, वो यहाँ सेम वही काम करेगा, जो ऊपर काम कर रहा है वही चीज नीचे काम करेगा, यहाँ पे हवा। दैट इज व्हाट अ वेंट्रल फिन इज। What does this do? It increases the stability at high angle of attack, because at a high angle of attack, look what is happening to your tail plane. It is submerged in the turbulent wash. So we need a structure below the wing which will increase your stability. Clear? Example, Shrishti. Which aircraft?
Manchuru. DA-42. Yes. Why else will I ask you? हाँ बता, पुल कितने हाथ उठा? नहीं भाई एग्जाम्पल का ही बोल रहा था भाई. DA-42 agreed? इवन एयरलाइनर में भी है ना भाई 707 कॉन्स्टलेशन. 707 idea नहीं है. So why is Cessna known as a very stable aircraft? Discuss करते, score discuss करते. There are more factors to stability. We'll discuss that. Now, what are the factors? Now I told you कि stability मिलती कैसे है और क्या क्या structures है जो हमें stability देते हैं. Now let us talk about if stability को कौन कौन सी चीजें affect करती हैं. Talking about fuselage. Fuselage is always destabilizing. Why is it destabilizing? As simply as I taught you in longitudinal stability, कि fuselage क्यों destabilizing होता है? वो इसीलिए destabilizing होता है because अगर मान लो ये आपकी पिच अप डिस्टर्बेंस थी तो ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ये हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, तो it will giving you a nose up, right? Now imagine the same thing but in yaw. Imagine the same thing but in yaw. This is the aircraft's nose. Aircraft should have been cruising like this, but it's a right yaw disturbance. This is the nose of the aircraft. Now this is not a pitch. You're looking at it from top down. Aircraft को आप ऊपर से देख रहे हो, तो nose right में disturb हो गई. Wind यहाँ से आ रही है. Fuselage के around pressure gradient क्या create होगा? Minus, plus. Now the nose still wants to go to the right. So is the fuselage destabilizing? It is. So just like lateral stability, fuselage is also destabilizing. What about dorsal fin and ventral fin? Of course, they are stabilizing things. They will stabilize the aircraft. And we have discussed why in the above two images. Now let's talk about the fin. Fin, of course, fin ही तो stability देता है भाई. जितना बड़ा fin होगा, उतनी ज़्यादा stability रहेगी. Now let's talk about a T-tail plane. T-tail plane ज़्यादा stability देगा normal tail plane से या कम stability देगा? ज़्यादा stability. Why? Because let's assume that we did not have this. तो नॉर्मल फ्यूजलाज तो ऐसे ही दिखता है. सो मान लो कहीं हवा आ रही है, राइट हैंड साइड से हवा आ रही है ऐसे, इट्स अ साइड स्लिप, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ फोर्स काइंड ऑफ लाइक इन दिस डायरेक्शन सो दैट द नोज गोज बैक. करेक्ट? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. बट you need to understand that this rudder is also a wing in itself, a wing which is vertical. So this will also have vortices which will get created. It will also have some amount of loss of lift. Do you agree with this? And how do we stop this? We stop this by creating a barrier. Now this T-tail plane acts like a barrier, like a wing fence, like a wing tip fence. हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ना, क्या क्या चीजें वोटिसीज को बनने से प्रिवेंट करती हैं. वी हैव स्पैन वाइज एटेन्यूएशन डिवाइसेस, वी आल्सो हैव विंग टिप फेंसेस, विंगलेट्स, शार्कलेट्स, विंग टिप टैंक्स, vortex generators. We have discussed about a wing washout. We have discussed about all of these things. So similarly, यहाँ पे wing, the T-tail plane acts like a wing tip fence. What is the difference between a wing fence and a wing tip fence? Wing tip fence tip पे रहेगा, wing fence span wise attenuate करता है, but along the span रहता है. Okay, so this is how a T-tail plane is stabilizing. So what was the first benefit of a swept back wing, Ankit, that we studied the other day? MCRIT increase कर देता है, right? That we saw in the video.
The second thing of a sweep back wing is that it is stabilizing. That is, you must have seen in all missiles and everything, no? They have the tail planes which are swept back. Why? Because it is stabilizing. So when we are talking about yaw, na, we will talk about drag. And we are talking about roll, we'll talk about lift. Because when you're talking about drag, then only we will be able to understand the lateral aspects. If we talk about lift, then it will come into roll aspect. No, we don't want that. Understood? So let us take the first consideration of a normal rectangular wing. It has gotten disturbed and its nose is to the left. Wind is coming from the right hand side. You guys with me on the screen? So what you need to see here is the wing, both of the wings are in the same side slip angle. So along the chord कितनी velocity आ रही है? अगर ये 100 है तो along the chord में भी 75 आ रही होगी, यहाँ पे भी 75 आ रही होगी. So both of them are creating the same amount of drag. So any effect? No effect. Let's talk about this. This is now an aircraft with a swept back wing. Its nose is now to the left and it is a right side slip. So winds are coming from the right. What you need to see here is because of the nature of the swept back wings, when its nose is pointed away, its key leading edge is almost perpendicular or very close to the perpendicular when it to the rudder airflow. And ये जो swept back है ये बहुत ज़्यादा steep angle बना देता है. Because of which यहाँ पे अगर ये 100 था तो इसको 100 ही मिल रहा है. और यहाँ पे अगर ये 100 था तो along the chord of the wing उसको 60 मिल रहा होगा. So which of these wings are creating more drag? The right wing is creating more drag. अगर ये ज्यादा ड्रैग क्रिएट कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अगर वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो नाक कहाँ जाना चाहिए? नाक राइट में जाना चाहिए. करेक्ट. So do you think this is giving you stability? I think so, it is giving you stability. Any doubts? As I told you, talking about power, it is more power aspects are most important when you come at high power and low airspeed, which is basically takeoff or landing. Again, just like longitudinal stability जैसे हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था, यहाँ पे पावर एस्पेक्ट जो है, power of stability will be more than the power on stability. Why? Same, low mounted engines थे. यहाँ पे भी अभी मान लो कहीं पे भी इंजन माउंटेड है राइट एंड लेफ्ट, अगर आप ऐसे यह हुआ, अगर ऐसे यह हुआ तो जब वो ऐसे जाना चाह रहा है, दिस इंजन विल प्रोड्यूस मोर थ्रस्ट बिकॉज उसको ज्यादा एयर फ्लो मिल रही है. इट विल गिव यू मच एडवर्स ऑफ एन इफेक्ट. ये वाला तो इसकी एयर फ्लो कम होगी बिकॉज ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, will produce an adverse effect. Be it propeller, be it jet engine, answer will be the same. Right. And again, stick fixed stability and stick free stability का वही फंडा है. As I told you, the difference between Cessna का control surface and an A320 का control surface. The Cessna, the rudder is free to move. अगर rudder पे कुछ चपत पड़ती है हवा की तो आपका पैर में जो rudder है वो move करेगा. Whereas it is hydraulically controlled on the A320 or any big aircraft generally speaking. So when it is hydraulically controlled, तो it is stuck. It is under a hydraulic lock. वो हिल नहीं सकता. It is fixed. यहाँ पे अगर आप कुछ मूव करोगे तो आपका कंट्रोल सरफेस नहीं हिलेगा बिकॉज इट इज अंडर अ हाइड्रोलिक लॉक. ठीक है. Any doubts in directional stability? That is all about directional stability. No? Okay, then we'll do lateral stability after a 5-minute break. चलो
लेट्स टॉक अबाउट लेटरल स्टेबिलिटी. लेटरल स्टेबिलिटी में साइड स्लिप एंगल कुछ अलग सा होता है. लेटरल स्टेबिलिटी में साइड स्लिप एंगल कुछ अलग सा होता है. यहाँ पे यौ तो है नहीं, तो साइड स्लिप का है. यौ तो है नहीं, साइड स्लिप का है. Now look at the first line. What is side slip angle? Again, the angle between the horizontal angle between the longitudinal axis and the relative airflow. Now let's say we have a disturbance in roll. This goes like tau. The air, it is also going forward in this direction and it is also dropping down in this direction. जब ये drop down ऐसी direction में करता है तो उसको wind यहाँ से लगती है. So जब आपका now look at the difference. Directional stability की जब बात हो रही थी, nose left में गई, wind कहाँ से आई? Right में आई. जहाज लेफ्ट में गया था ना, अब जहाज राइट में गया, विंड कहाँ से आ रही? राइट से ही आ रही. वहां पे ऑपोजिट था, यहाँ पे सेम है. जहाज राइट में जाने का चाह रहा है, विंड भी राइट से आ रही है. क्लियर? दिस इज द डिफरेंस. डायरेक्शनल स्टेबिलिटी का जो ग्राफ था, पॉजिटिव था नेगेटिव था? पॉजिटिव था. इसका ग्राफ क्या होगा? इसी की वजह से नेगेटिव होगा. क्लियर? ग्राफ्स के बारे में तो एक देर बाद में बात करूंगा. ओके. So wind would like to come from here if you are rolled to the left. Wind would like to come from the here if you are rolled to the right. Now what gives us directional stability? This is a left roll and this is a left side slip. And this is a right roll and a right side slip. Now let's talk about dihedral angle. Wings अगर ऐसे हैं, they are straight wings, there's no dihedral. अगर wings ऐसे हैं, there is a dihedral. Okay? अगर wings नीचे की तरफ है, it's an anhedral. So ये हॉरिजॉन्टल है, ये तुम्हारा डाइहेड्रल है. इससे यहां से यहां तक एंगल जो होगा डाइहेड्रल एंगल हो गया. क्लियर? सो इट इज द एंगल बिटवीन द विंग का प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल. क्लियर? चलो, स्टेबिलिटी किससे दी जाती है? अब स्टेबिलिटी हमारे पास है विंग डाइहेड्रल से. तो जो भी विंग डाइहेड्रल के जैसा इफेक्ट क्रिएट करेगा, हम लोग कहते हैं कि वो हमारी डाइहेड्रल इफेक्ट को बढ़ा देता है. सो स्वेप्ट बैक विंग फॉर एग्जांपल, it increases my lateral stability. So question में grammar कैसे आएगा उसका? This increases the dihedral effect of wings. Whatever increases the lateral stability increases the dihedral effect of wings. Clear? Clear. Now the stability is given by wing dihedral. This is wing dihedral and this is wing anhedral. It's destabilizing. Now let us see how does this wing dihedral work. We have two conditions. We have a dihedral and we have an anhedral. Let's take the example of a dihedral. The aircraft has been rolled in a disturbance to the left. So flight path आगे की तरफ है और साइड से भी आ रही है winds. Okay, 1 second. Now our aircraft has been rolled to the left. Now look कि जब winds left से आएंगी तो यहाँ पे एंगल ये ज्यादा बड़ा बना रहा है, ये छोटा बना रहा है ना? ठीक है. So increased lift on the left wing, decreased lift on the right wing. Why? इधर ज्यादा बड़ा एंगल है, इधर छोटा एंगल है. अगर यहाँ ज्यादा लिफ्ट मिल रही है तो इट विल टेंड टू रोल बैक टू इट्स विंग्स लेवल. लेट्स लुक एट एनहीड्रल. एनहीड्रल में उल्टा होता है. जो विंग नीचे गया हुआ है उसमें, क्योंकि वो नीचे की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे एंगल कम बनेगा और लिफ्ट यहाँ पर ज्यादा. सो इट्स डिस्टेबलाइजिंग. क्लियर? नाउ C-17 ग्लोब मास्टर, पता है सब लोगों को ये जहाज? सब लोगों ने देखा हुआ है जहाज? उसका विंग एनहीड्रल है या डाइहेड्रल है? Anhedral है, but it is said to be one of the most stable aircrafts. Why? Because of the second thing. So this is how, because of the second factor. Okay. So now do you understand why do wing dihedral and anhedral affect the stability, and how do they affect the stability as they do? Now let us see what are the factors which affect the stability. Wing position.
You can have an aircraft which is a high wing, which is a mid wing, and which has a low wing in that particular sequence. हाई विंग वाला फ्यूजलाज के ऊपर से जॉइंट है, मिड विंग वाला फ्यूजलाज के बीच से जॉइंट है, लो विंग वाला नीचे से जॉइंट है. बट ऑब्वियस, what you need to understand is high wing is more stable, low wing is less stable. चलो देखते कैसे. Stabilizing, neutral and destabilizing. Clear? Let's see how. Let's take a high wing and let's take a low wing. Same condition. High wing aircraft. अब जब यहां से हवा आती है तो यहां से ऐसे चल के इधर आ जाएगी. कोई रेजिस्टेंस वाला नहीं मिला, वो स्लिप होके निकल आएगी. मारेगी किसको? किसी को नहीं मार पाएगी. ये वाला on the other hand is getting an obstruction. This obstruction is the wing which is kind of lifting the wing in this direction. It will create this kind of a moment, which is a stable moment. Right. On the other hand, अगर विंड यहां से आने लगी, इधर मारेगी इसको और यहां से स्लिप करके चली जाएगी. अगर इसको यहां मारी तो इट इज मेकिंग इट डिस्टेबलाइजिंग. करेक्ट? So this is more like a dihedral, so it is giving you a dihedral effect. This is more destabilizing, so it's an anhedral effect. Clear? इसीलिए जो हाई विंग जहाज, जो लो विंग जहाज होते हैं, जितने भी लो विंग जहाज है, पाइपर आर्चर देख लो, DA-40, 42 देख लो, तुम्हारा जो नया टेक्नाम आया हुआ है, सारे लो विंग है. लेकिन जितने भी लो विंग जहाज है उनको डाइहेड्रल बनाया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो रही है. विंग ऐसे कर दो, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. क्लियर? ऑन दी अदर हैंड C-17 ग्लोबमास्टर का इतना बड़ा विंग है और इतना हाई विंग है कि उसमें जो लेटरल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, विच इज गिविंग यू प्रॉब्लम्स इन रोल. वो जहाज ज्यादा मनूवरेबल नहीं है, तो उसको मनूवरेबल बनाने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी कम करने के लिए, उसकी एक्सेस स्टेबिलिटी कम करने के लिए उसमें एनहीड्रल जानबूझ के डाला गया. क्लियर? इजी है. व्हाट अबाउट स्वीप बैक? स्वीप बैक का हमेशा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है. दैट्स द सेकंड बेनिफिट एज डिस्कस्ड. अब मैंने जैसे बताया था, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी में स्वीप बैक में हम लोग ड्रैग कंसीडर कर रहे थे क्योंकि दैट विल गिव अस लेटरल चीजें. हियर वी वांट रोल ना, तो हम लोग लिफ्ट कंसीडर करेंगे. अगेन लेट्स से आपका जहाज राइट में रोल हुआ है, तो राइट से विंड्स आ रही है. जहाज इधर ही जा रहा है, वो जा इधर ही रहा था, बट वो रोल हो चुका है राइट में. सो द राइट विंग इज डाउन, सो विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द राइट. ओके, इससे पहले जितनी भी डायग्राम देखे, बैक व्यू देखा था ना जहाज का, टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा. सो विंड्स आ रही है राइट हैंड साइड से. अगेन दे विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ कॉर्ड, so equal amount, so no effect. Equal amount of forces being exerted, no effect. Whereas on the other hand, again आप right roll disturbance में हो, again same, तो winds right से आ रही हैं. अब क्योंकि winds right से आ रही हैं, अगर ये 100 है तो 100 का 100 यहाँ पे यूज हो रहा है, और अगर ये 100 है तो यहाँ पे मेनली मान लो 60 यूज हो रहा है. So इस वाले विंग में आपको लिफ्ट ज्यादा मिलेगी और इस वाले विंग में आपको लिफ्ट कम मिलेगी. डू यू गाइस एग्री? सो जो डाउन गोइंग विंग था, इस पे लिफ्ट ज्यादा मिल रही है ना, क्योंकि विंड यहाँ से आ रही है. यहाँ पे लिफ्ट ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे लिफ्ट कम मिलेगी. अगर ये वाले में लिफ्ट ज्यादा मिल रही है, इट विल अगेन कम बैक. Because of this, the sweep back gives us a greater amount of stability in roll as well. So sweep back के दो फायदे,
हायर एमक्रेट, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी बढ़ गई, लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ गई। नुकसान, लेस अल्फा, लेस एंग, आपकी स्टॉल स्पीड बढ़ जाएगी, सीएल मैक्स कम हो जाएगा, टिप स्टॉल की टेंडेंसी होती है, डीप स्टॉल की टेंडेंसी होती है, अनडिजायरेबल स्टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसको हम लोगों ने ठीक कर दिया विथ स्टॉल स्ट्रिप, स्टॉल स्टिक पुशर्स, है ना, ये सारी चीजों के साथ हमने उसको ठीक कर दिया। दैट इज व्हाई वी कैन स्टिल यूज swept back wings. Now let's talk about flaps. Do you think flaps will increase your stability or flaps will decrease your stability? Flaps, अगर आपको लगता है वो आपकी स्टेबिलिटी कम कर देते हैं, क्यों? Let's tell you how. Flaps will decrease your stability in roll. Why? Because let's say this is your wing, this is your fuselage. पहले आप लिफ्ट कैसे क्रिएट कर रहे थे? This is how you were creating lift. So more lift was produced. Always more lift is produced from the inner sections of the wing. Always, huh? But good amount of lift is produced from these sections. अब यार ये जो रूट के पास है, सीजी की भी पास है, तो ये इतना भी फोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, इतना विंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट तो क्रिएट नहीं करेंगे, रोल मोमेंट तो क्रिएट नहीं करेंगे। सो जब आप फ्लैप्स डिप्लॉय करते हो ना, तो अगर मान लो कुछ भी चेंजेस अगर आती हैं, कोई भी चेंज इन लिफ्ट आती है, तो है ना, अगर मान लो गस्ट में डिस्टर्बेंस हुई, तो आपकी लिफ्ट, चेंज इन लिफ्ट तो कहीं से एक्ट करेगी, जैसे उधर एरोडायनेमिक सेंटर से एक्ट करेगी, कहीं ना कहीं से तो चेंज इन लिफ्ट एक्ट करेगी। So majority of the mean lift is acting through this point. Do you guys agree? The mean lift is acting through this point, let's say, and the mean lift is acting through this point. Can we say this? So this will create a, this will be the average turning moment. This will be the average arm. Agreed? But अगर मैं flaps ले लेता हूँ, अगर मैं flaps ले लेता हूँ, flaps तो इनबोर्ड लगाए जाते हैं, आउटबोर्ड तो ज्यादा लगाते नहीं है flaps. सेस्नास में भी तो आपने यही देखा हुआ है. तो what happens to the lift curve? तो जो लिफ्ट कर्व का जो ग्रेटर पार्ट है वो यहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहां से बहुत कम अमाउंट ऑफ लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है. अंडरस्टूड? सो एवरेज लिफ्ट कंपोनेंट कम्स हियर. पहले यहां पे था, अब यहां पे है. अगर उसको स्टेबलाइज करना होगा तो वो आर्म बड़ी होनी चाहिए ना, तब तो वो ज्यादा स्टेबलाइजिंग होगा. ये आर्म बड़ी होनी चाहिए, लेकिन एवरेज जो लिफ्ट की जो आर्म है वो कम हो गई, टुवर्ड्स द रूट हो गई, सो इट बिकम्स डीस्टेबलाइज. लिफ्ट की फोर्स बढ़ गई, सीएल मैक्स बढ़ गया, बट ये भी तो देखो लिफ्ट कितने बाहर से एक्ट कर रही है. जितने बाहर से चेंज इन लिफ्ट एक्ट करेगी उतना जल्दी आप स्टेबल हो जाओगे. अगर यहां से एक्ट करिए चेंज इन लिफ्ट तो बहुत टाइम लगेगा मेरे को स्टेबल. Hence, because flaps cause the lift to be produced from the central part of the wing's root, they will not have a big turning moment. That is why stability है, जीरो नहीं करता है, destabilize भी नहीं करता है. Correct word is not destabilizing, but stability कम करता है. So I will not put stability, destabilizing. I will put stability reduce करता है. I believe that will be a better word. Okay. अब vertical जो fin है, ये इसका स्टेबिलिटी में कोई लेना देना है? हाँ, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी में लेना देना है, वो तो अलग है, वो अलग चैप्टर, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. बट ये वर्टिकल चीज का लेटरल स्टेबिलिटी में कुछ लेना देना है? तो ये जो फिन है इसका है लेना देना. बिकॉज जब ये मान लो राइट रोल का डिस्टर्बेंस होगा तो ये ऐसे गिरना चाहता है. अगर ये ऊपर जो फिन है, ये ऊपर का जो फिन है, दैट मीन्स ये फिन, ऊपर वाले फिन, डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन, वो हवा भी इस पे लग रही है. अब यार ये जो
फिन है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर है तो ये वाला कौन सा रोल मोमेंट क्रिएट करेगा? ये वाला रोल मोमेंट क्रिएट करेगा, स्टेबलाइजिंग रोल मोमेंट, करेक्ट। अगर वो ऐसे डिस्टर्ब हो गया तो हवा ऐसे, यहां से हवा आएगी, अगेन इट इज क्रिएटिंग अ स्टेबलाइजिंग रोल मोमेंट। सो जितने भी आपके डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन है, दे आर ऑल स्टेबलाइजिंग। अब यही चीज अब यही चीज नीचे होती। अब मान लो आपका राइट रोल डिस्टर्बेंस है, फिन नीचे की तरफ है, फिन इज डाउन से डाउन बिलो द लॉन्गिट्यूड। हवा यहां लग रही है, हवा यहां लग रही है, so it will put the aircraft into a greater trouble. It will cause the aircraft to roll in the same direction. Do you guys agree? So a ventral fin is destabilizing. ठीक है, फिन है बट मैं उसको रोल में कंसिडर करूंगा। कोई डाउट? एक ऑक्सफोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपको सिमिलर सा, ठीक है। आप मान लो आपने राइट रडर मारा है, आपने राइट रडर मारा है, the aircraft will tend to yaw to the right. Now what will be the roll tendency of the aircraft initially? सो सब लोग बोलेंगे राइट में यो रोल, राइट में यॉ किया तो ये वाला विंग ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है, इट विल आल्सो रोल टू द राइट। यही सब लोग बोलते हैं, है ना। बट ये तो लॉन्ग टर्म टेंडेंसी हुई ना, क्योंकि वो पहले विंग ऐसे जाएगी, एयर फ्लो बढ़ेगा, लिफ्ट बढ़ेगी, फिर ऐसे जाएगा। इनिशियल टेंडेंसी क्या है? जैसे ही आप राइट हैंड मारोगे ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, तो वो नाक को इधर लेके जा रही है। दैट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट दिस इन यॉ, बट यहां से रडर पे ऐसे फोर्स आ रही है। नाउ थिंक अबाउट इन रोल। अगर आप रोल में ऐसे करो तो विंग ऐसे होना चाह रहा है, आपको लगा तो ऐसे होगा, लेकिन वो होना ऐसे चाह रहा है। सो ये इनिशियल टेंडेंसी है। लॉन्ग टर्म टेंडेंसी क्या है? लॉन्ग टर्म टेंडेंसी तो राइट हो गई। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टेक प्लेस। इसमें एक क्वेश्चन इसका है, एक ऐसा क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड में, सावधान रहना, सतर्क रहना जब करोगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अगर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो, गो कार्टिंग की भी है तुम लोगों ने, sedans have a better ride quality than an SUV because the center of gravity is low, correct? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम्हारी जितनी ज्यादा लो होगी उतना ज्यादा तुम स्टेबल रहोगे, पेंडुलस। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसका, दिस आल्सो हैज टू डू विद अ हाई विंग। विंग के ऊपर अभी कभी भी सीजी होती है तो वो लुढ़कना चाहेगी। विंग के नीचे, विंग बेसिकली क्या है, तुम्हारा सारा वेट तो विंग के ऊपर सस्पेंडेड है ना। सीजी उसके नीचे होगी तो अच्छा है, अगर विंग्स नीचे सीजी ऊपर है तो अच्छा कैसे है? नहीं अच्छा। तो सीजी नीचे होनी चाहिए और विंग ऊपर होना चाहिए तो तुम स्टेबल रहोगे। जैसे सीजी आगे होने से स्टेबिलिटी बढ़ती थी, सीजी नीचे होने से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। एनी डाउट्स? नो? पक्का? ओके, we'll take a quick 5 minute break. After that we'll do dynamic stability. So let's talk डायनेमिक स्टेबिलिटी। अब हम लोगों ने देखा स्टैटिक स्टेबिलिटी जो है लॉन्गिट्यूडनल में, एक डायरेक्शन में, देयर आर कंट्रोल सर्फेसेस व्हिच गिव अस, व्हाट गिव्स अस डायनेमिक स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग रन? डायनेमिक स्टेबिलिटी इज गिवन टू अस बाय एरोडायनेमिक डैम्पिंग। ठीक, जस्ट लाइक अ मोशन इज डैम्प्ड इन अ फ्लूइड, similarly the aircraft's motion is also damped inside the air. ओके, कोई भी चीज जो आपकी डैम्पिंग बढ़ाएगी वो आपका स्टेबिलिटी बढ़ाएगी। सो हाउ डू यू इंक्रीज डैम्पिंग? सेम, लेट्स से नाउ यू आर चेंजिंग, टॉकिंग अबाउट पिच। अब ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, राइट? सो मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, आई कैन फील सम एयर ऑन माई हेड हैंड। तो मेरे को मालूम है दैट whenever this thing is pitching up or down, whenever this thing is pitching up or down, I can sense a force. This
particular surface is going through some form of damping. Of course, why? Because if this guy is moving like this, he is moving through air. Air is hitting him like this here. It's being damped. अगर यही चीज ये डैम्प नहीं करेगा बंदा तो डायनामिक लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी होना पॉसिबल नहीं. नाउ दिस damping, it has to be proportional to something. So this damping is also a function of your dynamic pressure. Greater the dynamic pressure, greater is the damping. If I tell you, Shrishti, you are swimming, but Shrishti is swimming in a liquid which is very thick, kind of like honey, or whatever, her motion will be damped. But if she is swimming in water, bad example, I know, but you understand it. But if she is swimming in, let's say, water, her motion will not be damped to that extent. And if she is swimming in air, like she is flying out of air, huh? Astronaut, will her motions be damped ever? No. एक ट्यूनिंग फोक ले लेते हैं, टंग बजाया हम लोगों ने, हवा में वो थोड़ा टाइम चल के बंद हो जाएगा. उसी ट्यूनिंग फोक को पानी में रखो, ऐसे ही बंद हो जाएगा. उसी ट्यूनिंग फोक को कोई सॉलिड से पकड़ा दो, बंद हो जाएगा. वैक्यूम में रखो, हमेशा वाइब्रेट करते रहे. So that is what damping is. So let's take a graph. Okay, we have taken the graph of displacement versus time. It's a displacement versus time graph because why do we have a time graph? To understand how does stability affect across time. Think, of course, long-term stability, they asked about time graph. And why do we have the displacement axis? Displacement axis is there to find out ki displacement kitna hai. Pulkit and Anirudh, please turn your videos on. ओके, सो अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहे हैं ओवर टाइम बढ़ रही है, स्टेबिलिटी नहीं है. डिस्प्लेसमेंट अगर कम हो रही है, स्टेबिलिटी है. इजी है. तो इस ग्राफ में अगर हमको स्टैटिक स्टेबिलिटी जाननी है तो कैसे जानेंगे? ये पॉइंट पे आप डिस्प्लेस होके आ गए, दिस इज द टाइम t इज इक्वल टू 0. अगर टेंडेंसी यहाँ पे रहने की है तो तुम न्यूट्रल हो. अगर तुम्हारी टेंडेंसी डिस्प्लेसमेंट बढ़ने की है तो तुम अनस्टेबल हो. अगर तुम्हारी टेंडेंसी यहाँ पे जाने की है तो तुम स्टेबल. स्टैटिक, स्टैटिक स्टेबिलिटी यहाँ पे रहती है, खत्म हो जाती है. इसके बियॉन्ड कुछ भी हुआ, दैट इज नॉट स्टैटिक स्टेबिलिटी, दैट इज डायनामिक स्टेबिलिटी. Okay, but to ensure dynamic stability need to have static stability, which we have studied about. Okay, so this is a graph where the tendency is to come back. This is the graph where he will remain numb. Remember that example? And ये दारू सुट्टा है, where he will go away. So इसको हम लोग क्या कहते हैं? अब देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना सीधा सुथरा बच्चा है. डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टर्ब हुआ, कुछ नहीं, चुपचाप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया, उस साइड भी नहीं गया और सेटल डाउन हो गया. Such is known as a subsidence or a deadbeat. Why do we have a deadbeat? Why do you call it a deadbeat? Deadbeat stability मतलब तुमने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब हुआ, आया, सेटल डाउन कर गया, खत्म. He was not beating around the bush. So what is a beat? Beat is basically oscillations. A beat is what? Beat of oscillations. No oscillations. The oscillations are dead. वो बस, and he comes back. It's a dead beat. एक बार में सीधा. Also known as subsidence. As we can see, the static stability is positive and the dynamic stability. SS static stability, yes, dynamic stability. Both of them are positive. On the other hand, here we have neutral stability when it comes to static and neutral stability when it comes to dynamic. Now here we have divergence. इसको बोलते हैं divergence कि अपने original position पे तो कभी आया ही नहीं. So इसकी static stability is negative, तो dynamic stability का तो आ ही नहीं सकता, irrelevant बन जाती है. And this is known as divergence. Do you understand this? अब let's assume कि हमारे पास static stability है. तो क्या?
तो नीचे के तीनों में स्टैटिक स्टेबिलिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, positive. What is changing is dynamic stability. Let's have a look. Now let's take two forms of oscillations. Now these are oscillations in pitch. Pitch up, pitch down, pitch up, pitch down, pitch up, pitch down, pitch up, pitch down, pitch up, pitch down. Let's take two graphs. Let's take the red one first. Do you think that this is heavily damped? It has a static stability. It is coming back to its original position. Oh, gaya. He went beyond the mean position. Basically, pitch up, original position, pitch down. Because momentum है. फिर जब वो पिच डाउन हो गया तो अब जब वो नीचे हो गया तब नीचे वाली स्टेबिलिटी काम करेगी ना, अभी वापस स्टैटिक स्टेबिलिटी काम करेगी, वापस ओरिजिनल पोजीशन, एंड देन दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल इट फाइनली सेटल्स डाउन. So it took 1, 2, 3, 4, 5. We'll call it heavily damped. Let's compare it with the other one. It is not that heavily damped. सिक्का लो, टिंग करके घुमाओ, एक घुमाओ टेबल पे, एक घुमाओ गद्दे पे, गद्दे वाला डैम्प रहेगा, लेकिन टेबल वाला क्या मस्त आवाज निकालता है ना, बिकॉज इट्स नॉट दैट हेवीली डैम्प्ड. गद्दे वाला डैम्प्ड है ना. गेटिंग इट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? गुड. सो डायनेमिक स्टेबिलिटी अगर मैं दोनों की कंपेयर करूं तो किसकी डायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा है? रेड वाले की. किसकी डायनेमिक स्टेबिलिटी कम है? अगर डायनेमिक स्टेबिलिटी मैंने थोड़ी और कम कर दी और डायनेमिक स्टेबिलिटी 0 कर दी तो न्यूट्रल डायनेमिक स्टेबिलिटी. स्टैटिक स्टेबिलिटी है, हर बार वो इधर जा रहा है, वो वापस आना चाह रहा है, डिस्टर्ब हो गया वापस आना चाह रहा है, डिस्टर्ब हो गया वापस आना चाह रहा है, बट वो कभी भी सेटल नहीं हो रहा है. ही इज इन अ डिस्टर्ब्ड स्टेट टिल इटर्निटी. ठीक है, कोई डाउट? So here the dynamic stability is neutral. What about this? अभी देखो इसमें static stability है, but the displacement is increasing with time. This is known as a divergence again. Okay? Any doubts? No? So take an image of this graph later on. Don't do it now. We are going to talk about this. This is my favorite part. Let's talk about a few adverse dynamic effects. ठीक है? This is going to be a fun part. I'll end by 3 o'clock. कोई है जिसको फटीग हो गया? नहीं ना? फन है ना? ये खत्म, स्टेबिलिटी खत्म. लेट्स टॉक. सो डायनेमिक स्टेबिलिटी के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं हम लोग. लेट्स टॉक अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स इन पिच, लेट्स टॉक अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स इन रोल, एंड लेट्स टॉक अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स इन यॉ. पिच का थोड़ा बड़ा वाला है, पिच को हम लोग पहले करेंगे. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलेशंस. फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सिलेशन इज known as the phugoid. It's known as the phugoid. Please have a look at me. Aircraft है, एक vertical upgust है. Okay, everyone, I want everyone to turn your videos on. खोल के. अब ये एयरक्राफ्ट है, वर्टिकल अपगस्ट है. क्या हुआ? ऑल्टीट्यूड बढ़ गई. यू फील अ वेरी वेरी अपगस्ट, ऑल्टीट्यूड बढ़ गई. फ्लायर्स विल बी एबल टू रिलेट विद. ठीक है, सो द एयरक्राफ्ट हैज अ ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? उसके बाद क्या होगा? नाउ अब आपने कुछ नहीं, अगेन नो पायलट एक्शन,
You are maintaining a circuit altitude of, let's say, 1000 above ground, let's say 3100, let's say, ठीक है. अब क्या होगा? अब now it will start coming down. जब वो नीचे आएगा, it will start gaining speed. Potential energy will get converted into kinetic energy. वो 3000 होना चाहिए था, 3100 पहुंच गया. अब वो नीचे है, 3000 क्रॉस किया. अब वो और नीचे जाएगा, 2100 के आसपास जाएगा. स्पीड गेन कर गया. अब स्पीड गेन करके लिफ्ट ज्यादा मिल गई. अब वो ऊपर जाएगा. अब वो जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी थी, एक्स्ट्रा लिफ्ट थी, ना वो खर्च करके वो ऊपर जाएगा. अब पायलट कुछ नहीं कर रहा है. पायलट ने ट्रिम करके रखा हुआ जहाज. फिर वो वापस ऊपर जाएगा 3100. फिर वापस वो नीचे आएगा. फिर वापस जाएगा 3050. फिर वापस नीचे जाएगा 2950. फिर वापस जाएगा 313020. फिर वापस नीचे आएगा 2980. क्या आप लोगों ने ये सेम चीज डाउनविंड पे देखी है? हाँ फ्लायर्स, पता नहीं था ना वो फ्यूबॉइड होता है. इंस्ट्रक्टर बोल बोल के रोल आउट करो क्रॉसविंड से, पावर काटो, स्पीड स्टेबलाइज होने दो, उसके बाद ट्रिम करो. होल्ड इट, पावर काटो, स्पीड गिरेगी, पिच थोड़ा उठेगा, 80 पे स्पीड स्टेबल होगी, फिर ट्रिम करो. हम लोग कंट्रोल सरफेस उठाते ही ट्रिम कर देते हैं, बिकॉज हम लोगों को लगता है. इनिशियली नहीं होता था, लेकिन जब थोड़ा ज्यादा फ्लो बैठ गया हमारा खुद का, तब हम लोग जल्दी ट्रिम कर देते थे. So what we used to think as flyers, this is something that I have done till 200 hours. Only after I started teaching all of this, I realized, okay, this is what was happening at that time. So when you roll out a door downwind, 1000 feet circuit altitude, and you trim the aircraft and you leave it. जब तक खुद से हो तो ठीक है. इंस्ट्रक्टर तुम्हारा चेक लेने आ रहा है, जिस दिन सीएल चेक, वो बोलेगा 2950 क्यों चला गया, 3000 मेंटेन करना चाहिए. 50 फीट वो तुमने नहीं किया, तुमने तो ट्रिम कर दिया था ना. बट व्हाट यू फेल टू रियलाइज, इसकी तुम्हारी स्पीड स्टेबल नहीं थी. तुम्हारा, तुमने ट्रिम तो कर दिया, तुमने फोर्सेस जीरो कर दिए, बट क्या तुम्हारा एयरक्राफ्ट स्टेबलाइज हुआ था? वो ऑक्सीलेट कर रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फाउंड आउट योरसेल्फ 100 feet above and below your downwind altitude, towards the end of downwind, whenever your abeam threshold? How many of you trim it as soon as you level off? So now wait for speed to get stabilized, trim. 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे भाई, बट तुम्हारी राइड क्वालिटी बेटर हो जाएगी. डाउनविंड के स्टार्ट से लेके डाउनविंड के अबीम थ्रेशोल्ड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट. What you were experiencing was fugoid, long period oscillations. ठीक है. Delay the trim, let the speed stabilize, let the aircraft get stabilized. Okay, you'll improve your flying a lot. चलो, so what are fugoid oscillations as discussed? यहाँ पे आपकी फ्लाइट पाथ चेंज हो रही है. फ्लाइट पाथ पहले ऐसे जा रही थी, फिर फ्लाइट पाथ ऐसे जा रही थी. आपकी फ्लाइट पाथ, सो बेसिकली ऑल्टीट्यूड चेंज हो रहा है आपका. बट टेल मी समथिंग, क्या आपका एंगल ऑफ अटैक चेंज हुआ? नहीं. आपका फ्लाइट पाथ ऐसे था, आपका पिच एटीट्यूड भी ऐसे ही था. तो एंगल, फ्लाइट पाथ ऐसे, तुम्हारा एंगल ऑफ अटैक भी ऐसे, पिच एटीट्यूड भी वैसे, तो एंगल ऑफ अटैक सेम. तुम यहाँ पे आ गए, फ्लाइट पाथ ऐसा है, एंगल ऑफ अटैक ऐसा है. नीचे आ रहे हो, फ्लाइट पाथ भी ऐसा है, एंगल ऑफ, इज द एंगल ऑफ अटैक सेम? यस. व्हाट इज चेंजिंग? स्पीड इज चेंजिंग एंड ऑल्टीट्यूड इज चेंजिंग.
So in phugoid oscillations, what is changing, what is variable? Airspeed is variable, altitude is variable, and attitude is variable. Attitude means aircraft's pitch attitude. Attitude is variable. ओके okay? अब ये क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड ऑक्सीलेशन है, पायलट बहुत इजीली आके इसको कंट्रोल कर सकता है, और ये लॉन्ग पीरियड है, तो इनमें डैम्पिंग होगी? नहीं होगी। 1 मिनट में वो ऐसे जा रहा है, 1 मिनट में वो ऐसे जा रहा है, क्या ही डैम्प होगा? डैम्प तो कोई फास्ट मूविंग चीज डैम्प होती है ना, स्लो मूविंग चीज कैसे डैम्प? सो यू कैन इजिली कंट्रोल इट, एंड बट इसकी डैम्पिंग बहुत वीक रहती है। ओके, एंड दीज आर लॉन्ग पीरियड ऑक्सीलेशंस। क्या चेंज हो रहा है? आपकी एयर स्पीड बढ़ रही है, ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, एयर स्पीड कम हो रही है, ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, फिर ऑल्टीट्यूड कम हो रहा है, एयर स्पीड बढ़ रही है, एंड एटीट्यूड चेंज हो रहा है। बट ऑल दिस वाइल आपका एंगल ऑफ अटैक सेम है। हाँ, क्या आपका लोड फैक्टर चेंज हुआ? नहीं। ओके, आपके हिसाब से तो आप 1G फ्लाइट, ठीक है। Now let us talk about short period oscillation. These are known as PIOs, pilot induced oscillation. जिंदगी में अगर आपने ये किया, 3 महीने घर बैठोगे, ठीक है, अगर पकड़े गए तो। ओके, विच इज गुड, विच इज गुड, क्योंकि आधे से ज्यादा जिन लोगों के साथ ये होता है वो मरते हैं। इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। What are pilot induced oscillation or what is porpoise? These are short period oscillations. पायलट इंड्यूस्ड ऑक्सीलेशन सर्च करोगे नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, porpoise सर्च करोगे मिल जाएगा यूट्यूब पे। तुम लोगों ने वो स्नूप डॉग की वो वीडियोस अगर देखी है, गाड़ी जो उसकी, सेम वही चीज जहाज के साथ। देखा, फुल पावर डाला, एयरक्राफ्ट का नोज पूरा लेफ्ट में चला गया। डेंजरस है? क्यों डेंजरस है बताओ? स्टेबिलिटी एक्ट करेगी, तुम्हारा फ्लाइट पाथ तो सीधा है, नाक उधर चलेगी, तुम्हारा विंग ड्रॉप होगा ऐसे, तुम्हारे वेंट्रल फिन पे ऐसे वो ड्रॉप होगा, फिन पे पड़ेगी हवा, रोल और या इंड्यूस होगा। That is why it becomes very important to keep your nose straight. So this is what a porpoise is. Now tell me something. Will he feel? उसका फ्लाइट पाथ क्या था? उसका फ्लाइट पाथ तो यही था। उसका फ्लाइट पाथ तो ये नहीं हुआ ना, उसका फ्लाइट पाथ चेंज हुआ नहीं, उसका फ्लाइट पाथ वही था। दैट मीन्स रिलेटिव एयरफ्लो भी वही थी, लेकिन उसका एटीट्यूड चेंज हुआ, राइट? सो उसका एटीट्यूड चेंज हुआ, एंगल ऑफ अटैक चेंज हुआ। अचानक से एटीट्यूड चेंज हो रहा है, तो अचानक से एंगल ऑफ अटैक चेंज हो रहा है। अचानक से एंगल ऑफ अटैक चेंज हो रहा है, तो अचानक से लिफ्ट बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो लोड फैक्टर चेंज हो रहा है। वहां पर ज्यादा लोड फैक्टर कांस्टेंट था, यहाँ पे एंगल ऑफ अटैक कांस्टेंट नहीं है, लोड फैक्टर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वहां पे फ्लाइट पाथ ऊपर नीचे हो रही थी, मतलब रिलेटिव एयर फ्लो भी ऊपर नीचे हो रही थी। यहाँ पे फ्लाइट पाथ स्ट्रेट, रिलेटिव एयर फ्लो, क्योंकि यहाँ पे जहाज का फ्लाइट पाथ चेंज नहीं हुआ ना, शॉर्ट टर्म है ना वो। लॉन्ग टर्म में फ्लाइट पाथ चेंज हो सकता है, शॉर्ट टर्म में फ्लाइट पाथ है ना चेंज होगा। ओके,
So this is what actually happens. And this is what has happened because the manufacturer has done a good job. What happened in this video is that the nose wheel of the aircraft got broken. The nose wheel of any given aircraft is the most delicate part when it comes to landing gears, and it is made purposefully delicate so that it breaks under pressure. Because if he makes it very strong, what is the final result of porpoise? It will do this, and it will dive nose down. We don't want that. So it is purposefully made delicate so that it breaks and it arrests or stops the oxidation. So this is done to basically save the person. अब तुमने देखा कितना फास्ट चेंज हुआ ये, पहले देखो कितना स्लो है. 1 2 3 1 2 3 एक सेकंड का हमारे पास था, 1 सेकंड का. अब देखो ये कितना चेंज हो रहा है. 1 2 3 चेंज 1 2 3 आया, कम हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हुआ. सो इट्स अ शॉर्ट पीरियड ऑक्सीलेशन. ये पता है क्यों हुआ एक्सीडेंट? बिकॉज होता क्या है, जब हम लोगों को ऐसा लगता है ना टप्पा लगा, बाउंस होके हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तब हमारी गांड फट जाती है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहाज की नाक ऊपर, वो ऊपर चला गया, दुम, ऊपर चला गया. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहाज को लेंगे, हम लोग नीचे दबा देंगे. अरे भाई, शॉर्ट पीरियड ऑक्सीलेशन है, वो खुद डैम्प करेगा. जब तक वो टप्पा खा के ऊपर आएगा, सो यू विल ऑब्जर्व, neuron will catch that signal, you'll feel something, you'll catch that signal, it will go in your head, you'll process it. Now that processing will give nerve muscles the action. It will send the action through the nerves. It will tell your muscles to do something. Then you will actually do something. You will put the nose down. Now when you put the nose down, the control surface will go down. The control surface will take a millisecond time to generate the pressure curves. Then the force will act. So all of this takes half a second of time or 1 second of time. In that 1 second, जो जहाज ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, वो अपनी एनर्जी लूज करके अब वो नीचे आने की कगार में, क्योंकि डैम्पिंग हो गई. अब वो नीचे आना चाहते हैं, तुम उसको वापस नीचे फेंक रहे हो. अब जब वो तुम एक्चुअली नीचे फेंकते हो और वो खुद नीचे आना चाहता है, तब तुम्हारी ज्यादा हैंड, तो फिर तुम वापस ऊपर उठाते हो. जब तुम वापस ऊपर उठा रहे होते हो, तब तक वो बच चुका होता है. फिर तुम वापस ऊपर आ रहे होते हो और तुमने भी उठाया होता है, तो वो और एग्रेवेट हो जाता है. सो तुम नीचे जाना चाहते थे कम जोर से, ज्यादा जोर से जा रहे, फिर ऊपर आना चाहते थे कम जोर से, ज्यादा जोर से ऊपर आ रहे, फिर तो बचते ही जाओगे तुम, यही करते रहे तो. This is what is known as pilot induced oscillation. So what should a pilot do at this point? Leave everything. Take the nose of the aircraft, take the stick, just hold the damn stick. Don't move the stick. Whenever you get into a bounce, do not fucking touch the control surface. Just attitude में hold किया हुआ, उसी में hold करो. ना नीचे करो ना ऊपर करो, just hold the damn thing. जहाज गिरेगा, बैठेगा, हार्ड लैंडिंग होगी, ठीक है. बाउंस के बाद हार्ड लैंडिंग हो, ठीक है. उसको वापस स्मूथ करने के चक्कर में मत जाना. होल्ड द डैम स्टिक. ऑलवेज रिमेंबर, होल्ड करके रखो बस. होल्ड का मतलब ये नहीं कि खींच दिया, जस्ट कीप इट देयर. क्या होगा उससे? इट विल कम डाउन एंड इट विल सिट. इट विल सिट, इट विल बी अ फर्म और अ स्ट्रांग टच डाउन, बट इट विल सेव योर लाइफ. क्लियर? टच हुआ नहीं हुआ? टच नहीं हुआ. बाउंड, सो दिस इज अ balloon. balloon.
nose wheel gaya. Got it? So this is what a short. So short period oscillations, as you can see, they are uncontrollable. What should you do? The good part is because they are moving so fast, they are heavily damped, and you don't have to do anything. You just have to hold it. खुद डैम्प हो जाएगा, खुद ठीक हो जाएगा. It is a heavily damped. If you end up doing anything, it will become into a PIO and you lose your life. ठीक है. इनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत छोटा होता है बिकॉज फटाफट एक्ट करता है. You cannot do that fast of an input. Maybe not even a fighter pilot can. Okay. What changes? Your angle of attack changes. So your flight path is the same. So you're basically doing tick 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 tick. That वो वाला क्या था? वो ऐसे था. इसमें तुम्हारा फ्लाइट पाथ सेम है, तुम्हारा एंगल ऑफ अटैक चेंज हो रहा है. Got it? It's happening at a constant level. It's happening at a constant level, and it is happening at a constant airspeed. Clear? These are the differences between a short-term and a long-term oscillation. Any doubt? Now let us go to roll and yaw. The last two topics for today, and we'll go. Now let us talk about Dutch roll and spiral divergence. I'll show you videos for both. Dutch roll is a phenomena which looks like this. Yeah. This is what a Dutch roll is. तो आपका एयरक्राफ्ट बेसिकली ऐसे जा रहा होता है. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जा रहा होता है. Got it? Okay. This is what a Dutch roll is. So when does Dutch roll happen? Dutch roll happens when you have very, very strong lateral stability and weak directional stability. ताकि डच रोल ना हो, लेटरल स्टेबिलिटी ज्यादा है, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी कम है. इसी के कारण C-17 ग्लोब मास्टर में अनहील्ड विंग्स लगाए हैं ताकि जो लेटरल स्टेबिलिटी वो ज्यादा बढ़ के डच रोल की टेंडेंसी ना दे. तो लेटरल स्टेबिलिटी हम लोगों को सिमिलर रखनी है ना यार. ऐसा तो है ना कि लेटरल स्टेबिलिटी गांड पर रख दो, तो बहुत अच्छी लेवल की रख दो एंड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एकदम वीक है. वी कैन नॉट डू दैट. दैट कॉजेज डच रोल. I'll explain it to you myself and thereafter I'll show you a video. Okay, works. Okay. So let's say we have a disturbance in yaw. Disturbance किसमें है? yaw में है. Okay. अब डायरेक्शनल स्टेबिलिटी तो वीक है. क्या होगा? अब yaw में डिस्टर्बेंस आई, विंड्स यहां से आ रही हैं. कौन सी पहले एक्ट करेगी, कौन सी ज्यादा डोमिनेट एक्ट करेगी? लेटरल वाली. साइड स्लिप है. तो बेसिकली क्या समझ रहे हो? डायरेक्शनल स्टेबिलिटी में साइड स्लिप आता है, रोल स्टेबिलिटी में भी साइड स्लिप आता है. लेकिन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकता है. राइट साइड स्लिप है तो नोज राइट को जाना चाहती है. और लेटरल स्टेबिलिटी में क्या होता है? राइट साइड स्लिप होती है तो विंग्स लेफ्ट को जाना चाहते हैं, है ना? अगर स्टेबिलिटी है तो यही होता है ना. ऑपोजिट हो रहा है ना काम.
हमको क्या मालूम है, योर सेम और रोल सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. इफ आई एम गोइंग टू द राइट, आई शुड रोल टू द राइट एज वेल, राइट. उल्टा काम है यहाँ पे स्टेबिलिटी का, इसीलिए प्रॉब्लम होती है. तो यॉ में डिस्टर्बेंस हुई, नाक मेरी लेफ्ट में, इट्स अ राइट साइड स्लिप. सो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था, डायरेक्शनल डिस्टर्बेंस आई, बट साइड स्लिप है, राइट से हवा आ रही है. स्टेबिलिटी कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है? लेटरल वाली स्ट्रांग है. तो यहाँ पे ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस होगा. साइड स्लिप यहाँ से आ रही है, लिफ्ट ये ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. Vandana, I'll repeat again for you. We have a disturbance in yaw, and the side slip is from the right. So lateral stability is more than directional stability. तो winds जब यहाँ right hand side से आ रही हैं, this wing will produce more lift, and वो wing इसको यहाँ पे भी लगेगी, but this is weak. This will come later. Directional stability will come later. So क्या हुआ, ये इसको रोल करके ऐसे चला गया, एंड जब तक ये रोल करके यहाँ जा रहा है, उसके बाद जाके डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एक्ट की, क्योंकि डायरेक्शनल स्टेबिलिटी इज वीक. तो जब डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एक्ट की, ना ना कभी राइट को जाना चाहिए, तो ये ना कैसे राइट को जा रही है. अच्छा, अब देखो, जब नाक कभी भी राइट को जाएगी, तो ये वाला विंग भी तो ऐसे ज्यादा तेजी से हवा के थ्रू ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है ये वाला. तब क्या होगा, बिकॉज दिस विंग इज नाउ गोइंग फार्दर, तो ये राइट रोल क्रॉस करेगा. जब ये राइट रोल क्रॉस किया, तो वापस साइड स्लिप चेंज हो गई. अब ये ऐसे, गॉट इट, एंड देन अगेन इट कम्स इनटू द सेम डायरेक्शन, एंड ये कंटिन्यू होगा. सो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? योर डैम्पर से. So these slight variations in yaw disturbances are catered by a yaw damper. Okay? कोई डाउट? अब स्पाइरल डाइवर्जेंस क्या होता है? स्पाइरल डाइवर्जेंस इज अगेन विच where the directional stability is more, lateral stability is less. अब इसमें रोल में डिस्टर्बेंस कंसिडर करते हैं. Right wing goes down, left wing goes up. This is a disturbance in roll. Where is the side slip coming from? Right. कौन सी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन सी पहले एक्ट करेगी? डायरेक्शनल. साइड स्लिप राइट से आ रही है, इसको इसको ऐसे उठाना चाहिए था, सब ठीक हो जाता, लेकिन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ पे थप्पड़ पड़ेगी. साइड स्लिप राइट से आ रही है, तो नोज विल आल्सो गो राइट. नाउ लेटरल स्टेबिलिटी इज गेटिंग ओवरपावर्ड, बिकॉज अब तुम्हारा नाक राइट में जाना चाह रहा है, ये वाला विंग ज्यादा तेज जा रहा है हवा के थ्रू. सो दिस विल अगेन रोल हियर, और ज्यादा इधर रोल हुआ तो और ज्यादा इधर यॉ हुआ, एंड दिस विल कंटिन्यू एंड यू विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ. This is known as spiral divergence. When does this happen? When the directional stability. Always remember, directional stability ज़्यादा will go down in a spiral. Lateral stability ज़्यादा, that's all. That marks the end of stability. Clear? Any doubts? Any doubts?